सबसे पहले तो जो प्रोपोर्शन है, एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। जब दो रेशियोज इक्वल होते हैं तो हम बोलते हैं कि दोनों, मतलब ये चारों क्वांटिटी ए बी सी डी जो है प्रोपोर्शन में है। सो फोर नॉन जीरो क्वांटिटीज ए बी सी डी आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन इफ एंड ओनली इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी। सो दैट मीन्स a by b is equal to c by d. So we write it as a is to b is in proportion to c is to d. For example, 2, 3, 4, 6 are in proportion since 2 by 3 is equal to 4 by 6. The quantities a, b, c and d are called the terms of the proportion. A, B, C and D are first, second, third and fourth terms respectively. Now, first and fourth terms are called extremes or extreme terms, and second and third terms are called means or middle term. तो जब आप लिखते हैं A is to B is in proportion to C is to D, तो ये जो A और D है ये दोनों extremes हो गए, और जो B और C है, ठीक है, ये दोनों means हो गए. Now, if the quantities A, B, C and D are in proportion, then A by B is equal to C by D. Cross multiply कर लोगे तो AD is equal to BC है. AD मतलब product of extreme is equal to product of middle terms, right? So product of extreme is equal to product of middle terms. Now इसको हम लोग cross product rule भी कहते हैं. Fourth proportional. अब if A, B, C and D are in proportion, then D is called the fourth proportional here. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो ए बी सी डी ई एफ ये सारे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कहलाते हैं तब जब ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी. तो ये देखो, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये सारे डायगोनल एलिमेंट सेम, तो इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं. इन पर्टिकुलर थ्री क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड ए बी एंड जी, सेम काइंड मतलब कि अगर हम रुपीज मनी का बात कर रहे हैं तो सारा रुपीज को ही रेफर करना चाहिए, लेंथ की बात कर रहे हैं तो सब मीटर को ही रेफर करना चाहिए, मतलब बेसिकली यूनिट सेम होना चाहिए और उसका फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो सेम होना चाहिए. So if three quantities are of the same kind are said to be in continued proportion if and only if the ratio of A to B is equal to B to C. तो A B C continued proportion में इसका मतलब A by B is equal to B by C. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC B square is equal to AC हो जाएगा. ठीक है. So for example, 2, 4 and 8 are in continued proportion when 2 by 4 is equal to 4 by 8. Cross multiply करोगे तो 2 into 8 is equal to 4 square. So first proportional, ठीक है. So if A, B and C are in continued proportion, then A is called the first proportional here. Third proportional, if A, B and C are in continued proportion, C is called the third proportional. और मीन प्रोपोर्शनल B हो गया. इफ A, B and C are in continued proportion, B is called the mean proportional. C हो गया थर्ड प्रोपोर्शनल, A हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शनल. तो A by B is equal to B by C, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, B square is equal to AC या B is equal to root under AC. The mean proportional between two number is the positive square root of their product. Since ratio is taken between positive numbers, we only take the positive square root of AC. तो यहाँ पे positive square root इसीलिए हम लोग लेते हैं क्योंकि रेशियोज के जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, पॉजिटिव ही रहेगा. अब एक एक करके क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है, इसको करो और आंसर बताओ जल्दी.
सर हो गया। क्या है आंसर? आंसर बताओ। सर 48 इंटू 36 अंडर रूट 3। अरे वैल्यू बताओ ना एग्जैक्ट। एक्स का वैल्यू क्या आया, वाई का वैल्यू क्या आया? सर वो अभी इसका y की वैल्यू 12 आई है, x की निकालना। See, 6 is the mean proportional between two numbers x and y, and 48 is the third proportional to x and y. तो mean proportional between x and y, तो x, 6, y are in continued proportion. So 6 square is equal to xy हो जाएगा. ठीक है, तो इससे हमारा आ जाएगा xy is equal to 36, right? So ये first equation. उसके बाद थर्ड प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड वाई, मतलब एक्स वाई 48 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 48 इंटू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो ना, तो इससे आ जाएगा y इज इक्वल टू 36 बाई एक्स, राइट? तो या x इज इक्वल टू 36 बाई वाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 36 बाई वाई, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 48 इंटू 36 बाई वाई, y क्यूब इज 48 इंटू 36, 8 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, मतलब 2 क्यूब इंटू 6 क्यूब, राइट? सो इससे हमारा y इज इक्वल टू 2 इंटू 6, 12 आ गया, y का वैल्यू 12 आ गया, x इज इक्वल टू 36 बाई 12 विच इज इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 12। क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? लिख लिया सभी ने? यस सर। नेक्स्ट वाला कीजिए।
सर x की वैल्यू 3 है, मतलब हाँ, x की दिया वैल्यू था। 3 है। ठीक है, देखो कह रहा है क्या हो गया बाकियों को, बाकी लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं भाई? 3 ही बच्चे दिख रहे हैं, बाकी पता नहीं कहाँ चले गए। What number must be added to each of the numbers 6, 15, 20 and 43 to make them proportional? So let the number added be x. तो इससे proportional हो गया, मतलब 6 plus x divided by 15 plus x is 20 plus x divided by 43 plus x. हम लोगों को इन सारे नंबर्स में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे जिससे कि ये चारों नंबर प्रोपोर्शनल हो जाए। प्रोपोर्शनल हो जाए मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। 6 प्लस एक्स इंटू 43 प्लस एक्स इज 20 प्लस एक्स इंटू 15 प्लस एक्स। मल्टीप्लाई कर लो, 6 इंटू 43 अगर हम करते हैं 258 प्लस 6x 43x प्लस एक्स स्क्वायर 300 प्लस 20x प्लस 15x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। 43 प्लस 6 49x, तो 258 प्लस 49x 300 प्लस 35x 14x इज इक्वल टू 42 और x इज इक्वल टू 3। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होना और क्या सब्ट्रैक्ट होना है वो करना है। सारे नंबर में एक नंबर सब्ट्रैक्ट होगा और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में रखना है इसको। जल्दी करो, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए।
क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या आया आंसर? 6. 6 है. What number should be subtracted from each of the number 31? तो मान लो x is subtracted from each of this. So 31 minus x divided by 26 minus x is 26 minus x divided by 22 minus x. Cross multiply कर लेंगे. So ये 31 minus x into 22 minus x is 26 minus x का whole square. So this is 31 into 22 is 682 minus 31x minus 22x plus x square is equal to 26 square is 676 plus x square minus 52x. ठीक है, 6 और ये 6 is equal to 31 plus 22 is 53x. So 53x minus 52x, which is equal to x. So x is equal to 6. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए. क्या हो गया कविन, तुम कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हो आज? यस कविन, दिव्यांश, तुम लोग करो भाई, क्वेश्चन तो करके बताओ.
हुआ बच्चों? सर ये क्वेश्चन कैसे हो गए वो बता दीजिए। हाँ मेरे से हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बस सॉल्व कर लेना, अपने आप आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है, इफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस सी डी एंड बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में इसका मतलब यही हुआ, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। So this will be equal to a square plus b square plus a square d square plus b square c square plus c square d square is equal to, यहाँ पे a square b square plus c square d square plus 2ab cd। a square b square और c square d square कैंसिल हो गया, इधर ले आएंगे a square d square प्लस b square c square माइनस 2abcd इज इक्वल टू 0। इससे AD माइनस BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा। सो इससे आ जाएगा AD इज इक्वल टू BC और A बाय B इज इक्वल टू C बाय D। यही हमें प्रूव करना था। आगे समझ? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो गिवन कंडीशंस हैं उसको सॉल्व करो। देखो इसमें
a plus c is equal to 2b दिया है फर्स्ट इक्वेशन. दूसरा इक्वेशन है 1 by b plus 1 by d is 2 by c. क्रॉस मल्टी इसको सॉल्व कर लो तो d plus b by db is equal to 2 by c और b plus d into c is twice bd. ठीक है. So this is equal to, अब देखो 2b का वैल्यू है, 2b का वैल्यू a plus c है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो from 1 into b plus d into c. 2b की जगह रख लेते हैं a plus c into d. bc plus dc is ad plus dc. So इससे आ जाएगा c by d is equal to a by b. So a is to b is in proportion to c is to d. प्रूफ करना था. Next question. डुप्लीकेट रेशियो तो आप लोगों को पता ही है. डुप्लीकेट रेशियो मीन्स स्क्वायर ना. Thirteenth example, if A is not equal to B and A is to B is the duplicate ratio of A plus C. So A by B is duplicate ratio of A plus C, मतलब A plus C whole square and B plus C whole square. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. A into B square plus C square plus 2BC is equal to B into A square plus C square plus 2AC. AB square plus AC square 2ABC
इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर बी 2ab से। अब इससे आ जाएगा, देखो ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी इधर कर लो, और बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर यहाँ पे अगर हम लोग कर लेते हैं, ए बी इंटू बी माइनस ए सी स्क्वायर इंटू बी माइनस ए, ये कैंसिल हो गया, तो इससे आ गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो मतलब ये प्रूव हो गया सी इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है बच्चों? समझ आ गया आप लोग को? यस सर। Let's go to the next one. इस तरह के क्वेश्चन को तुम्हें याद होगा, हम लोग को ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, मतलब ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी। अब हमें ये प्रूफ करना है, देखो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो इसको हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते हैं उस फॉर्म में। इट इज बेटर कि इसको ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी इज इक्वल टू के कर ले, तो ए इज इक्वल टू बी के हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे तो बी इज इक्वल टू सी के। अब b इज इक्वल टू सी के इसमें वापस सब्स्टिट्यूट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू सी के इंटू के, मतलब सी के स्क्वायर हो गया, और b तो सी के है ही हमारे पास। ठीक है, a और b का वैल्यू पता चल गया, राइट, मतलब c के टर्म्स में। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो LHS इज इक्वल टू a बाय सी सी के स्क्वायर बाय सी विच इज के स्क्वायर। RHS is equal to 2a square minus 5ab plus 7b square, और यहाँ पे 2b square minus 5bc plus 7c square. So this is 2 into a square ठीक है, so 2 into a square मतलब ck square का whole square minus 5ab ck square into ck plus 7b square ck का whole square divided by 2b square 2 into ck का whole square minus 5bc ck into c plus 7 times c square। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2c स्क्वायर k स्क्वायर को कॉमन ले लो, अंदर बच जा रहा है 2c स्क्वायर माइनस 5c स्क्वायर k प्लस 7c स्क्वायर k स्क्वायर, k 4 होगा, c के 7c स्क्वायर k स्क्वायर है, एक मिनट, यहाँ पे k स्क्वायर आएगा, ये के बाहर हो गया, डिवाइडेड बाय, इसको ओपन करोगे 2 टाइम्स सी स्क्वायर के स्क्वायर
-5c² के प्लस 7c², ये कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू k², तो दोनों इक्वल हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, सॉल्व हो गया। क्लियर बच्चों? यस सर। नेक्स्ट है, इसको भी वैसे ही करना जैसे अभी हम लोगों ने किया था। के वाले मेथड से ही इसको भी करेंगे। सर हो गया। हो गया? So B is the mean proportional between A and C. So that means A by B is equal to B by C is equal to K. A is equal to BK, B is equal to CK, तो A is equal to CK square and B is CK. अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम लोग A4 मतलब C4K8 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर K4 C square K square B4 means C4 K4 divided by B4, हम लोग LHS की बात कर रहे हैं, B4 that is C4 K4 B square C square K square into C square plus C4. अब यहाँ पे C4 K4 बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा K4 प्लस ऑफ K स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे C4 बाहर ले लेंगे K4 प्लस
k square plus 1. So this is equal to k4. RHS is a square, मतलब c square k4 divided by c square k4. दोनों इक्वल हो गए. LHS is equal to RHS. सॉल्व कर लिया. Please try doing this. यहाँ पे भी सेम चीज करते हैं. इन सभी को k के बराबर इक्वेट कर दो. x by a is equal to y by b is equal to z by c is equal to k. तो इससे हमारा x is equal to ak, y is equal to bk और z is equal to ck आता है. इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और LHS RHS को इक्वेट कर लेंगे. कर लो फटाफट. सर हो गया. ओके. चलो विल स्टॉप हियर. ठीक है. इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब करेंगे. तुम लोग का ट्यूसडे को टेस्ट है तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. ये सब जो चैप्टर्स हैं, है ना. कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना. ठीक है. यस. चलो ठीक है. चलो बाय. टेक केयर एवरीवन. बाय सर. थैंक यू.